Okay, so welcome all again. Welcome to this next video for this MCQ series on anatomy. I'm Doctor Ankit Khandelwal, Professor of Anatomy and Faculty of Anatomy at LNX. So, welcome to my channel, Human Anatomy by Doctor Ankit. Let's start the MCQ. So, we have, as promised, we have promised to include around 10 MCQs in each discussion with crisp and concise explanation. Let's start. So, today's first MCQ over here. A boy born to a 31-year-old homeless woman presented with this clinical finding. The pregnancy was complicated by preeclampsia and UTI, which was treated with cefazolin. The abnormality described in this patient could have been prevented with. So, what is the abnormality that has been described in this patient? Well, what you can see is this tuft of hair on the back that might be towards a probable diagnosis of spina bifida occulta, right? Spina bifida occulta, which is actually a neural tube defect. I hope you all are aware, and that is a defect of a neural tube due to the non-closure of which pore, anterior or posterior? It is due to the non-closure of the posterior neuropore. Posterior neuropore, which normally should close by around day 28 of embryology, but if it doesn't close, it might lead to spina bifida occulta or spina bifida cystica, different things. So, it's a neural tube defect. So, how can it be prevented is what they are asking. So, we all must be knowing that the neural tube defects are prevented by instillation or giving of the vitamin supplementation, that is a folic acid supplementation, right? So, it's a folic acid supplementation could have prevented this particular congenital abnormality. So, options are alcohol cessation, vitamin supplementation. Yes, so vitamin supplementation over here, option B is the best possible answer over here, and hence the answer. Avoiding antibiotics. See, antibiotics here, it was cefazolin, cephalosporin, I guess is fine for pregnancy, right? But yeah, vitamin supplementation could have prevented this. Here's an sagittal MRI image, again pointing out towards the location of a tuft of hair and around the lower back. Could have been a possible diagnosis of, again, the spina bifida occulta, right? So, see, the topic over here is neural tube defects. If the anterior neuropore doesn't close, we have anencephaly. We have if the posterior neuropore doesn't close, we have spina bifida, and this is the mildest form of spina bifida occulta. Then there is spina bifida cystica, which has meningocele, then myelocele, then mylomeningocele, then they have rachis and all that. Even they have craniorachis, involvement of everything. So remember the neural tube defects, vitamin supplementation. Okay, so let's come to the second question of this session. Let's see. A 54-year-old woman comes to the physician because of one-day history of fever, chills, and double vision. Double vision, okay. She also has a 2-week history of headache and foul-smelling nasal discharge. Her temperature is 103 Fahrenheit. Examination shows a mild swelling around the left eye. Her left eye doesn't move past midline on far left gaze, okay, but moves normally when looking to the right. Interesting. Corneal reflex is absent. Okay. Absence of corneal reflex is most likely caused by compression of which of the following labeled structures. So here you can see some A, B, C, D, E over here, 5 options. So normally there are 4 options, but for completing the whole topic, we have 5 options over here. So they are asking absence of corneal reflex. So first of all, what is this image about? Can you see these empty spaces? These are the sphenoidal air sinuses. Okay. The pituitary gland is sitting over it, and this structure over here, this is our cavernous sinus, both sides cavernous sinus. We are looking at a coronal section, right? We are looking at a coronal section, and there are structures in the lateral wall of cavernous sinus, and there are structures inside the cavernous sinus. Now, coming to the question, absence of corneal reflex. So, once you touch a cornea or the conjunctiva with a wisp of cotton, then there is sudden closure of both the eyes. The afferent is taken up by the V1, that is ophthalmic division of the trigeminal, and the efferent, that is closure of both the eyes, that is orbicularis oculi, supplied by which nerve? 7th, that is the facial nerve. Out of V1 and 7th, which is related to the cavernous sinus, because it's a case of actually cavernous sinus thrombosis with all the findings. Therefore, the nerve that is involved out of V1 and 7 in the cavernous sinus is V1. Where? So in the lateral wall, if I zoom it, the lateral wall, you have nerve number 3, then you have nerve number 4 over here, then this is V1 and this is V2.
and this over here is the sixth nerve, abducens nerve, and that is our internal carotid artery. Basically, option number A is the sixth nerve, option number B is the third nerve, C option is the fourth nerve, that is the trochlear, C third is oculomotor, and D option is the V1, and that is actually the answer over here, option number D for Delhi. Okay, and E option is our V2. E option is our V2 over here, V2 maxillary nerve. So we come back over here, then we can easily go with option number D, right? So 2-3 things in this question. Cavernous sinus thrombosis can be a separate entity as a whole topic itself, as a different question. Anatomy over here, identify the image and should know what are the afferent and efferents for the corneal reflex, right? Okay, next question. After asking a 47-year-old lady to open her mouth wide and say ah, like for simple general examination, the physician notes a deviation of the uvula to the left side. So this is left, that is right, uvula is deviating to the left side, okay? And asymmetry in the elevation of soft palate with the right side of palate sagging. So we have right side of palate as sagging and the uvula is deviating towards the left side, okay? What specific nerve is most likely damaged? See, there is abnormality in the positioning of the uvula and the soft palate. Basics. Soft palate actually has a lot of muscles and most of them are supplied by, yes, what's the nerve? Pharyngeal plexus. The efferent over here is basically vagus nerve. Afferent is ninth, glossopharyngeal. When the uvula is shifting to the left side, it means that it is being pulled towards the left side because the balance is shifting to the left side, because right side uvula or the right side soft palate is actually not receiving the nerve supply. Who will supply the right side of soft palate? It is the right vagus, 10th nerve or the right vagus nerve. Problem is in the right vagus nerve. Is that in the option? Yes, it is, sir. Very good. Go with it. Basics clear, concepts clear, no confusion. A, B, C, D, C is the answer. No doubt. Okay. एग्जाम में मजा तब आता है जब डाउट कम हो, स्पेसिफिक हो, आप श्योर हो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, है ना? चलिए, लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन ओवर हियर. 43-year-old lady comes to the physician because of tingling and weakness in her left arm. Tingling and weakness, matlab it is sensory and motor involvement both. An image of the brachial plexus is shown. A nerve conduction shows a decreased transmission of electrical impulses in the labeled structure. So, yep, if you look at the labeled, can you see the circle over here? There is decreased transmission of electrical impulses. Achha. Physical examination is most likely to show impairment of which of the following movements? Good question. इसके लिए you should know basically the total picture or image or the flowchart of the brachial plexus. बात खत्म. Here, just to help you guys, C5 to T1 is already given. So there are 3 trunks चलिए चलते हैं. Then there C5, C6 बनाता है upper trunk, C7 बनाता है middle trunk and C8 बनाता है lower trunk. Actually we have to identify कि ये जो arrow है, जो circle है, it is pointing towards which nerve, probable. Then all these 3 trunks will have what? They have divisions. तो ये divisions बनेंगी, right? If can you अब ये कैसे पहचाना है? Can you look at this area? 3 division मिलके एक बना रही हैं क्या? Chord बना रही हैं. Because this is the area for chord. Which 3 divisions form one chord? It is a dorsal division forming the posterior chord. इसका मतलब ये कि ये जो है ये posterior chord है. इसका मतलब ये है that this one is the lateral chord और जो नीचे है that is the medial chord. अब सर्कल कहाँ है? posterior chord की ब्रांच में. Okay. Now posterior chord has a lot of branches but it has mainly 2 terminal branches. अब posterior chord की branches क्या थी? निमोनिक था, यहाँ पे यूज़ करते हैं अल्नर या अल्ट्रा यूज़ कर सकते हो निमोनिक. उसमें क्या है? U and L are अपर लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ये तो टर्मिनल ब्रांच है नहीं. N is nerve to latissimus dorsi. These 2 are terminal branches. A से क्या है? Axillary nerve. Okay. R से क्या है? The largest branch of brachial plexus, radial nerve. That means ये सर्कल है, it is either axillary या फिर radial. This is for sure. Now we are not sure it is axillary or radial. इतना नहीं लग रहा, but axillary radial में से एक है. अब out of 4 options, one of the options should point out towards axillary nerve or radial nerve. वही आंसर है. देखते हैं. Option number A is saying extension of wrist and fingers. Now extension of wrist or finger is done by radial nerve or its branch. तो पहला ही ऑप्शन radial nerve पे जा रहा है. ठीक है जी, लग रहा है आंसर है, मिल गया. देखते हैं. Position of the thumb. Position of the thumb is done by opponens pollicis. Supplied by which nerve? Supplied by the median nerve. Okay.
फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट डन बाय फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस, नर्व कौन सी है, मीडियन नर्व। फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म ब्रेकियलिस, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। आंसर क्या है? आंसर इज अवर ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स, क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन रिलेटेड टू एक्सिलरी नर्व। तो हमें पता है कि यार दैट दिस सर्कल इज एक्चुअली पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द रेडियल नर्व। आंसर है ऑप्शन ए। एक इमेज जस्ट फॉर रेफरेंस, वी हैव द कंप्लीट ब्रेकियल प्लेक्सस। सो इसको रिवाइज कर लेने का है, एंड यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पर दिस द एक्सिलरी, दैट इज द रेडियल नर्व, एंड दिस द पोस्टीरियर कॉर्ड। यही दो डिवीजन से, एंड वी फिगर्ड आउट इन द ऑप्शंस कि दे वर पासिंग आउट द रेडियल नर्व। Here you have the root, trunk, division, chord, उसकी basically 5 terminal nerves. Okay, good question, brachial plexus. Coming to the fifth question over here, upper limb से lower limb पे आते हैं। We have actually, I have tried to mix out all the questions. ऐसा नहीं कि ये टॉपिक चल रहा है सब कर लो, अब टाइम नहीं है। चलिए, a rugby player injures his left extended knee when hit from the lateral side by a defender trying to tackle him. डिफेंडर आया भाई साहब लेटरल साइड से, इन्होंने इनको लेफ्ट नी पे चोट मार दी। When performing any examination, a physician applies pressure to the lateral thigh and medial leg. Very interesting. Physician is applying pressure to lateral thigh and medial leg पे। अच्छा, प्रेशर मिल रहा है इस तरह से, मतलब इसको इस तरह घुमा रहे हैं, इसको इस तरह से घुमाया जा रहा है। This clinical test is a check for the integrity of which of the following ligaments. Imagine करो, it is very basic logical thing. अगर if the physician is pushing and pulling the thigh and the leg in this direction, क्या वो स्ट्रेच करना चाह रहा है? इट इज द फिजिशियन इज ट्राइंग टू स्ट्रेच विच एरिया? फिजिशियन इज ट्राइंग टू स्ट्रेच दिस एरिया, है ना? दिस इज द मीडियल साइड ऑफ द नी। यहाँ पे कौन सा लिगामेंट होता है? वी हैव द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। उसको और क्या बोलते हैं? वी आर आल्सो नोन एज द टिबियल कोलेटरल लिगामेंट। यही होगा, बिकॉज क्रूशिट टेस्ट कर नहीं रहे यहाँ पे। क्रूशिट के लिए वी हैव द लैकमेन टेस्ट, वी हैव द एंटीरियर रॉ टेस्ट, वो सब है। दे आर टेस्टिंग द टिबियल और द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये तो कॉमन सेंस लग रहा है। देखिए ऑप्शन है, यस ऑप्शन है, बात खत्म हो गई। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बाकी ऑप्शन देख लो। लेट अस चेक द अदर ऑप्शंस। फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट विल बी ऑन द लेटरल साइड, वो अपोजिट साइड होगा, यहाँ पर होगा फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। क्रूशिएट ऑब्वियसली देखो जॉइंट के अंदर होते हैं क्रूशिएट, क्रूशिएट आर इनसाइड, है ना? दे आर इंट्रा कैप्सुलर एक्स्ट्रा साइनोवियल, कैप्सूल के अंदर है लेकिन साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर है, क्रूशिएट अंदर होता है। ओके, विल शो इन इमेज ओवर हेयर। ये इमेज देख लो ध्यान से, ठीक? यहाँ देखिए, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स। टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, ये रहा टिबियल कोलेटरल, और अपोजिट साइड में वी हैव फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। क्रूशिएट कहाँ, लिगामेंट कहाँ है? क्रूशिएट लिगामेंट इज लोकेटेड राइट ओवर हेयर, एकदम बीचों बीच होगा यहाँ पर, ये लोकेशन है क्रूशिएट लिगामेंट्स की। ओके, मेनिस्कस इज ऑब्वियसली बिटवीन द कॉन्डाइल्स, ठीक? तो लेटरल लिगामेंट्स मीडियल एंड द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स, याद रखिएगा, ठीक? कोलेटरल लिगामेंट्स। चलिए, कमिंग फ्रॉम दिस, आधी जंग हो गई, आधी और बची है। 6 क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। A 29-year-old female elite athlete was lifting heavy weights during an intense training session. The athlete felt severe pain radiating suddenly to the posterior aspect of her right thigh and leg. The patient was taken to the hospital when an MRI was performed. Which nerve was most probably affected? चलो देखते हैं भाई, MRI का है ये, सजिटल सेक्शन दिख रहा है MRI का, फाइन। आइडेंटिफाई हमें यहाँ पे ये करना है कि विच वर्टिब्रल, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क तो है ये, PIVD का केस है, बट बिटवीन विच वर्टिब्रल बॉडी इज दिस हैपनिंग, ठीक है? वो हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करो बेट, दिस इज दिस एरिया फॉर सैक्रम, ये L5 होगा, इसके ऊपर ये L4 होगा, तो किसके बीच में है? द प्रॉब्लम इज अराइजिंग, इट इज बिटवीन L4 L5, जो ये बॉडी है इनके बीच में जो डिस्क है, दैट इज एक्चुअली एरो भी दिखा रहा है, herniating. Always remember, most commonly बता रहा हूँ, because there are different types of prolapse of intervertebral disc, but most commonly जो नीचे वाली नर्व होती है, मतलब नीचे वाला जो नंबर है वो नर्व इन्वॉल्व होती है, बात खत्म। because there can be by directly posterior herniation, posterolateral herniation और lateral herniation. most commonly क्या होता है herniation बात करें तो it is posterolateral herniation most common. उसमें क्या होती है, जो नीचे वाला नंबर होता है, जिसमें L4 L5 है, then L5 nerve is involved. अगर एकदम लेटरल हर्निएशन हो रहा है, विच इज नॉट कॉमन, तो उसमें ऊपर वाली L4 जाएगी, है ना? अगर एकदम पीछे पोस्टे हर्निएशन हो रहा है, बेसिकली यू हैव कॉर्डाइकोइना सिंड्रोम ओवर हियर।
कोडा इक्वाइनस सिंड्रोम आ जाता है यहाँ पे। मोस्ट कॉमनली दे हैव नॉट स्पेसिफाइड, सो वी रिगार्ड इट एज पोस्टरलेटरल। नीचे नर्व जाएगी L5 एंड L5 इज द ऑप्शन, यस इट इज द ऑप्शन ओवर हियर। बात खत्म। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रल, इसलिए वी हैव प्लेस्ड वन मोर रेफरेंस इमेज ओवर हियर, आइडेंटिफाई करने में इट माइट हेल्प। दिस इज L5 एंड दैट इज द सैक्रम स्टार्टिंग। अगेन यहाँ पे L4 L5 पे दे आर शोइंग अ प्रोलैप्स डिस्क, राइट। चलिए, वेरी गुड। सो दिस वाज द अवर 6th क्वेश्चन। 4 और बचे हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स आर रिलेटेड विद द मार्क्ड स्ट्रक्चर। देखते हैं अभी कौन सी नर्व है। ऑब्टुरेटर, पुडेंडल, फीमोरल, sciatic, कौन सी स्ट्रक्चर है दिस? व्हाट वी आर लुकिंग एट इज ऑब्वियसली द हिप बोन एंड दिस पर्टिकुलर साइट इज व्हाट, दिस ओवर हियर इज द ischial स्पाइन। ischial स्पाइन के पास में कौन सी नर्व होगी? ऑब्टुरेटर होगी। सी ऑब्टुरेटर नर्व क्या करेगी? इट पासेस थ्रू व्हाट, इट पासेस थ्रू द ऑब्टुरेटर फोरामेन, ऑब्टुरेटर कैनाल बनता है यहाँ पे। इट माइट बी वेरी क्लोज, ठीक। पुडेंडल नर्व, इट इज अ साइट फॉर पुडेंडल ब्लॉक। पुडेंडल नर्व के पीछे से आती है, इट गोज फ्रॉम पेल्विस देन एंटर्स इनटू पेरिनियम, क्योंकि उसे एंटर करना है पुडेंडल कैनाल में, है ना। आई विल शो इन इमेज। तो पुडेंडल नर्व तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है यहाँ पे, विदाउट अ डाउट ओवर हेयर। पुडेंडल नर्व आंसर बिल्कुल है। फीमोरल नर्व, नाउ लुक ओवर हेयर कि ये हमारा एरिया है इंग्वाइन लिगामेंट का, है ना, ASIS टू प्यूबिक ट्यूबरकल। फीमोरल नर्व जो होती है दैट इज एक्चुअली रनिंग ऑन द लेटरल एस्पेक्ट, वो नीचे आती है इस तरह से, दूर है। शियाटिक नर्व भी पीछे से जाएगी बट इट विल रन पोस्टीरियरली इन द ग्लूटियल रीजन। आंसर तो इसका पुडेंडल नर्व है विदाउट अ डाउट, जिसकी रूट वैल्यू S2 S3 S4 है, विच इज एक्चुअली अ नर्व ऑफ द पेरिनियम। पेरिनियम की नर्व है ये, राइट। अब एक इमेज में और देख लीजिए, इसकी ना कि श्योरिटी हो जाएगी। कैन यू सी दिस सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट? सैक्रोस्पाइनस, ये कहाँ? सैक्रम से जा रहा है स्पाइन। व्हाट स्पाइन इज दिस? ischial स्पाइन, जो उस क्वेश्चन में स्टार बना था जिस पर, है ना। सैक्रम से निकला, देखो S2 S3 S4, दिस इज 2 3 एंड 4। यहाँ कौन सी नर्व आ रही है? दिस इज द पुडेंडल नर्व, ओके। इट वेंट बिहाइंड सैक्रोस्पाइनस। अब देखिए देन दिस रीजन, अब यहाँ ध्यान रखो बेटा, ये जो रीजन है दैट इज द रीजन ऑफ पेरिनियम। पीछे पोस्टीरियरली यहाँ पर यू हैव द एनल ट्राइंगल, आगे आओगे तो यू हैव द यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। यूरोजेनाइटल ट्राइंगल, पीछे एनल ट्राइंगल है। एंड दिस नर्व इज रनिंग इन अ कैनाल ओवर हियर दैट इज नोन एज एल्कॉक्स कैनाल। क्वेश्चन आता है, what is the content of Alcock's canal? We have the pudendal nerve and the internal pudendal vessel, दोनों होती हैं, pudendal nerve, internal pudendal vessel, जो कि तुम्हारी इंटरनीलियक आर्टरी की ब्रांच है। चलिए आएंगे उस पर। सो दिस द कोर्स ऑफ pudendal nerve। ब्रांचेस भी देख लो यहाँ पर, बिकॉज इमेज है inferior rectal nerve। क्वेश्चन क्या सप्लाई करेगा? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, याद रखिए, है ना, द स्फिंक्टर दैट इज फॉर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ डेफिकेशन, वो ये नर्व है, inferior rectal nerve। पेरिनियल ब्रांच ऑफ पुडेंडल नर्व, ये सप्लाई करेगा कई सारी मसल्स को पेरिनियम में एंड ऑल्सो गिव्स ऑफ सम सेंसरी सप्लाई। दैन डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस और क्लाइटोरिस, फीमेल और मेल के हिसाब से, ठीक। तो ये 3 ब्रांचेस याद रखिएगा। इनका निमोनिक है IPD, inferior rectal, पेरिनियल और डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस और क्लाइटोरिस। फिलहाल पुडेंडल नर्व इज द आंसर एंड देयरफॉर वी मूव ऑन टू अवर 8th क्वेश्चन। आगे यहाँ पे एक और CT लीजिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर CT के क्वेश्चन क्यों इतने हो रहे हैं? बिकॉज एनाटॉमी के क्वेश्चन बात हो रही है ना। विच ऑफ द लेबल्ड स्ट्रक्चर इन द गिवन CT थोरैक्स इंडिकेट्स अ लेफ्ट मिनी ब्रोंकस। अब देखिए CT मतलब राइट, ये लेफ्ट, ये आगे, ये पीछे, ये बात खत्म। अब कह रहे हैं लेफ्ट मिनी ब्रोंकस, तो ये राइट वाली साइड तो देखो ही मत, हमें इस साइड में आंसर ढूंढना है। ब्रोंकस में क्या होगी? ब्रोंकस में तो सर एयर होगी, वेरी गुड। अब एयर यहाँ पर कैसे, वाइट दिखेगी, ब्लैक दिखेगी? भैया तो ब्लैक दिखेगी, ठीक है भाई, ढूंढना शुरू करो भाई। स्टार्ट सर्चिंग ऑन द लेफ्ट साइड ओवर हेयर, एनी ल्यूमिनल स्ट्रक्चर जिसमें कि ब्लैक शेडो है, दिख गया? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द लेफ्ट ब्रोंकस। तो सर बाकी के ऑप्शंस क्या हैं? गुड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बाकी ऑप्शन क्या लग रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर A और जो E है, दे आर दी पार्ट्स ऑफ एओर्टा, ठीक है। A इज द असेंडिंग एओर्टा, स्टार्ट होगा पीछे घूमते हुए, आर्च बनते हुए, लेफ्ट साइड में E आ गया, डिसेंडिंग एओर्टा और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। B भी एरो जा रहा है यहाँ पे, ये हमारी राइट ब्रोंकस है, राइट ब्रोंकस। C तो हो गया हमारा लेफ्ट ब्रोंकस, आंसर ही C है ना, C इज द आंसर, लिख दो यहाँ पर। तो A, B और D क्या होगा? D इज स्लाइटली ऑन द मिड लाइन राइट साइड में, थोरेसिक डक्ट एसाइकस वेन में से स्ट्रक्चर हो सकता है, कुड भी थोरेसिक डक्ट, है ना, ये स्ट्रक्चर हो सकता है यहाँ पर, है ना, और कुड भी पार्ट ऑफ से पीछे की तरफ है, ईसोफेगस भी हो सकता है, राइट।
कैंडिडेट स्ट्रक्चर। फिलहाल लेफ्ट ब्रोंकस ऑप्शन नंबर सी, वो हमारा पक्का तौर पे आंसर है। ठीक, चलिए सो लास्ट 2 क्वेश्चंस, आज का कोटा काफ़ी है, 10 सवाल बहुत हैं। चलिए 9th क्वेश्चन देखो क्या लग रहा है यहाँ पे, ब्रेन का कोरोनल सेक्शन है ये। इमेज देखते क्लियर होनी चाहिए दैट वी आर लुकिंग एट ब्रेन, कैसे सल्काई गारे बाहर दिख रहे हैं और कैविटीज़ के हिसाब से लग तो रहा है कोरोनल सेक्शन है। चलो आगे देखते हैं, लेट अस सी मोर। अ मेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद द लेफ्ट आर्म क्लमजीनेस, लेफ्ट आर्म काम नहीं कर रहा है। फिजिकल एग्जाम रिवील्स मोटर वीकनेस एंड इंक्रीज मसल टोन, मोटर प्रॉब्लम है। स्पेसिफिकली विद द पैसिव एक्सटेंशन ऑफ द लेफ्ट आर्म, तो एक्सटेंड कर रहे हैं, देयर इज इनिशियल रेजिस्टेंस देन सडन रिलीज व्हेन मैक्सिमम एक्सटेंशन इज रीच्ड। इसे बोलते हैं एक तरह से क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी, इफ यू रिमेंबर मेडिसिन है ना, पहले तो रेजिस्टेंस मिल रहा है एकदम से खुल गया, ऐसा चाकू खुलता है ना, पहले पिक्चर में होता तो चाकू धीरे धीरे खोल रहे हैं और झटके से खुल जाता है ना। क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी बेसिकली अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। ठीक है, पैथोलॉजी विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन स्ट्रक्चर्स मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। देखो अपर मोटर न्यूरॉन है, दैट इज इट मीन्स कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जा रहा है ना, बिफोर यू हैव दैट लोअर मोटर न्यूरॉन या बिफोर यू हैव एंट्री हॉर्न, तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा। और वो कहाँ रन करेगा, इट हैज़ टू कम फ्रॉम दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसके बाद इट रन्स इन दी, वो कौन से फाइबर्स हैं, प्रोजेक्शन फाइबर्स। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, वी हैव प्रोजेक्शन फाइबर्स, क्या नाम है इनका, जो हमारे थैलेमस और बेसल न्यूक्लिया के बीच में रन कर रहे हैं, इंटरनल कैप्सूल है, वहाँ पर रन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। अब इसमें देखते हैं, दिस इज द कोरोनल सेक्शन, यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए दिस इज ऑल ग्रे मैटर है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये, दिस इज कोरोना रेडिएटर, हर तरफ से आ रहा है, और ये बनेगी यहाँ पर आईसी इंटरनल कैप्सूल, ये जा रहा है हमारा इंटरनल कैप्सूल विच हैज़ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ट्रैक्ट दोनों है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन इज द कॉर्डेट न्यूक्लियस, अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया, बेसल न्यूक्लिया बोल दो। बी इंटरनल कैप्सूल है, बी लग रहा है अपना आंसर होना चाहिए, फिलहाल बी है इंटरनल कैप्सूल, प्रोजेक्शन फाइबर्स, क्योंकि उसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है ना। और इंटरनल कैप्सूल में याद रखिए, यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दी ब्लड सप्लाई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरनल कैप्सूल की। सी डी क्या है, सी डी दे आर द पार्ट ऑफ यू नो दिस प्यूटामेन, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ग्लोबस पैलिडस है एज अ पार्ट ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, वो सब हमारे एक तरह से बेसल न्यूक्लिया के पार्ट्स हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल कैप्सूल। एक लेबल्ड इमेज है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, एक एक चीज़ होगी क्लियर। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें वी हैव लेबल्ड दिस वाज एक्चुअली द आंसर। और क्या लेबल्ड थे ध्यान दीजिए, कॉर्डेट न्यूक्लियस लेबल्ड था, प्यूटामेन भी लेबल्ड था, ग्लोबस पैलिडस भी लेबल्ड था, और बाहर क्लोस्ट्रम वाले एरिया सब लेबल्ड थे। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, डू रिमेंबर थैलेमस, डू रिमेंबर द कैविटीज़, ये लेटरल वेंट्रिकल है जो साइड में है, और बीच में जो आ रही है वो हमारी थर्ड वेंट्रिकल है, दैट इज बिटवीन द थैलेमस, थैलेमस के बीच में। दिस इज द इंटरनल कैप्सूल, यहाँ से फाइबर्स पास कर रहे हैं, राइट। चलिए साहब, सो नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, लेजन और लीजन ऑफ द मार्क्ड नर्व लीड्स टू। मार्क्ड नर्व का लीजन से क्या होता है, कहाँ का एरिया से पहला क्वेश्चन आता है, ये एरिया है कहाँ का, समझो। ये एरिया इतना बता दूँ, दैट इज इन फ्रंट ऑफ एल्बो, नोन एज क्यूबिटल फोसा। बाकी क्लियर ना हो तो ऑप्शंस देख लो एक बार, ऑप्शन देखो कि रिस्ट ड्रॉप है, लॉस ऑफ हाइपोथीन और सेंसेशन है, अच्छा मतलब हाथ का है, अपर लिम्ब का है, फिर क्लियर हो जाएगा, हाँ यार लग तो एल्बो के सामने क्यूबिटल फोसा का रहा है। देन दिस आज लेजन ऑफ माग्ना, नर्व कौन सी है ये, क्यूबिटल फोसा में कौन सी नर्व होती है, क्यूबिटल फोसा में इफ यू रिमेंबर मीडियल से अगर लेटरल जाते हो देन यू हैव द निमोनिक एमबीबीआर, याद है, मोस्ट मीडियल कौन सी नर्व है, मीडियन नर्व, बाहर सबसे बाहर होती है रेडियल नर्व, दो तो नर्व हैं बाहर बाहर, बीच में क्या है, देन वी हैव दी ब्रेकियल आर्टरी, है ना, ब्रेकियल आर्टरी है, और उसके जस्ट लेटरल में देखोगे तो बाइसेप्स का टेंडन है। ये तो एक बेसिक चीज़ है, पता होनी चाहिए। अब इसमें क्या लग रहा है, मीडियल क्या लेटरल क्या, ध्यान से देखो, दिस अपीयर्स लाइक एन आर्टरी, तो ये हो गई हमारी ब्रेकियल आर्टरी, दिस वुड बी लोकेशन ऑफ द मीडियन नर्व, मतलब इसका मतलब कि दिस इज द मीडियल साइड, दैट इज द लेटरल साइड, हम राइट देख रहे हैं लेफ्ट देख रहे हैं, क्यूबिटल फोसा लेफ्ट साइड, एंड दिस ह्यूज इज दी बाइसेप्स, ये बाइसेप्स मसल है। तो कौन सी नर्व हुई है, ये रेडियल नर्व, एरो मार्क है रेडियल नर्व पे, स्टार मार्क। अब रेडियल नर्व पे प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, रिस्ट ड्रॉप होगा, बिल्कुल होगा, आंसर बन गया जी, खत्म करो। बाकी ऑप्शन देख लो, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ हाइपोथीनल एमिनेंस, दैट इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अल्नर नर्व, वो तो क्यूबिटल फोसा में है ही नहीं, तो कहाँ होती है अल्नर नर्व, इट रन्स बिहाइंड द मिडिल एपिकॉन्डाइल,
पीछे होती है, ये मिडल एपिकॉन्डाइल इसके पीछे, मीडियन नर्व आगे है और रेडियल नर्व साइड में निकलती है। एप थंब डिफॉर्मिटी ये मीडियन नर्व का कारनामा है, पर वो तो दूसरी साइड है, क्लॉडिकेशन वेसलिक प्रॉब्लम होगी। ओके, यहाँ पे इमेज में आप ये देख लो एक बार फिर से, अगेन दिस इमेज वाज पर्टिकुलरली फॉर द लेफ्ट साइड, तो ये मीडियल है, ये लेटरल है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, आइडेंटिफाई कीजिए ब्रेकियल आर्टरी बाइसेप्स। सो दैट्स ऑल, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग। करते रहो, टॉपिक उठाते रहो, रिवीजन करते रहो, पेशेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखो, मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए। दैट्स ऑल, enjoy, see you very soon with the next 10 more important MCQs. Thank you.